Happy Prince. High on a column stood the statue of the Happy Prince, gilded with gold, two bright sapphires for eyes, and a large red ruby on his sword hilt. One night, a little swallow flew over the city. His friends had gone away to Egypt for winter. He alighted between the feet of the Happy Prince and found a golden bedroom. Just as he was going to sleep, a drop of water fell on him. "How curious!" he cried. "There isn't a single cloud in the sky, yet it is raining." Another drop fell. He looked up. The Happy Prince was crying. "Who are you?" the swallow said. "I am the Happy Prince." "Why are you weeping then?" asked the swallow. "Far away," continued the statue, "there is a poor house. I can see a seamstress. Her face is thin and worn. She is making a gown for the queen's maids of honor. Her boy has fever and wants oranges. She has only water. Swallow, will you take her my ruby?" The swallow plucked the ruby and flew away with it. At last he came to the poor house. The boy was tossing on his bed and the mother was asleep. He laid the great ruby on the table and flew back. "It is curious," he remarked, "but I feel quite warm now, although it is so cold." "That is because you have done a good deed," said the prince. "I can see a young man," said the prince. "He's trying to finish a play for the director of the theater, but he's too cold and hungry to write. My eyes are made of sapphires. Pluck out one of them and take it to him." The swallow plucked out the prince's eye. He went and put the sapphire on the table without the student seeing him. "In the square below," said the Happy Prince, "there stands a little match girl. Her matches have got spoiled. Her father will beat her if she does not bring some money. Give her my other eye." "I will stay with you," said the swallow, "but I cannot pluck out your eye." "Do as I say," said the prince. The swallow plucked out the prince's other eye. He swooped past the match girl and slipped the jewel into her hand. "What a lovely bit of glass!" cried the girl. She ran home, laughing. "You are blind now," the swallow said. "I will stay with you always." All the next day he sat on the prince's shoulder and told him stories. Then the snow came. The poor swallow grew colder, but he would not go. He tried to keep himself warm by flapping his wings. But at last he knew that he was going to die. "Goodbye, dear prince," he murmured. He kissed the Happy Prince and fell dead. A loud crack sounded inside the statue as if something had broken. The leaden heart had snapped into two. Hello students, open your book in your English syllabus chapter 4 and the name is Happy Prince. एक खुश राजकुमार. ये जो स्टोरी है, एक राजकुमार और एक स्टेचू रहता है राजकुमार का, उसके और एक स्वैलो बर्ड होता है, उनके बारे में. ओके, तो प्लीज़ ओपन योर बुक चैप्टर 4 द हैप्पी प्रिंस, पेज नंबर 41. High on a column stood the statue of the Happy Prince,
gilded with gold, 2 bright sapphires for eyes and a large red ruby on his sword hilt. एक कॉलम पर एक स्टैचू होता है स्टूडेंट्स, और वो स्टैचू किसका होता है? हैप्पी प्रिंस का। आप जो यहाँ पर स्टैचू देख रहे हैं, ओके। ग्लाइडेड मीन्स होता है कवर्ड विथ अ थिन लेयर ऑफ गोल्ड और गोल्ड पेंट। ये जो आप गोल्ड पेंट देख रहे हैं, लेयर देख रहे हैं, उससे एक लेयर है। जो स्टैचू जो है वो किसका बना हुआ है? एक गोल्ड की लेयर है, ओके, सोने की। एंड टू ब्राइट सफायर, सफायर जो होता है एक ब्राइट ब्लू कलर का स्टोन होता है, मीन्स कीमती पत्थर होता है, जो कहाँ लगा हुआ है? हैप्पी प्रिंस की आईज में, ओके। एंड अ लार्ज रेड रूबी ऑन हिज स्वर्ड हिल्ट, और अब जो स्वर्ड मीन्स होता है तलवार, एंड हिल्ट मीन्स जो ये हैंडल है इसे कहते हैं हिल्ट, एंड स्वर्ड मीन्स तलवार। तो आप ये जो रेड कलर के यहाँ पे स्टोन्स देख रहे हैं, ओके, इन्हें कहते हैं रूबी, जो एक कीमती पत्थर होते हैं। ही वॉज मच एडमायर्ड, जो हैप्पी प्रिंस है हर कोई उसे देख के क्या करता था? प्रशंसा करता था, तारीफ करता था। वाई कांट यू बी लाइक द हैप्पी प्रिंस? आस्क्ड अ मदर ऑफ अ लिटिल बॉय हु वॉज क्राइंग। एक बच्चा है, वो रो रहा होता है, और उसकी मम्मी जो है वो कहती है कि तुम इस हैप्पी प्रिंस की तरह क्यों नहीं हो? ही लुक्स लाइक एन एंजल, सेड द चैरिटी चिल्ड्रन। चैरिटी चिल्ड्रन बच्चे कहते हैं कि ये एंजल की तरह दिखता है। वन नाइट अ लिटिल स्वेलो फ्ली ओवर द सिटी। एक रात स्वेलो में एक बर्ड होता है जो सिटी के ऊपर से उड़ रहा होता है। हिज फ्रेंड्स हैड गॉन अवे टू इजिप्ट फॉर विंटर। उसके जो दोस्त रहते हैं, मीन्स उसके और जो अदर बर्ड्स रहते हैं, पक्षी रहते हैं, वो क्या होता है, कहाँ जा रहे होते हैं? इजिप्ट। इजिप्ट एक कंट्री है, तो ठंड के लिए, मीन्स यहाँ पे जब ठंड शुरू होने वाली होती है तो वो क्या होता है, बहुत सारे बर्ड्स जो है, जब किसी देश में ठंड बहुत बढ़ने वाली होती है, बर्फ़ गिरने वाली होती है, तो वो अदर कंट्रीज़ में चले जाते हैं जहाँ पर थोड़ी गर्मी होती है। तो उसी तरह से उसके जो फ्रेंड्स थे वो विंटर के लिए कहाँ जा रहे थे? इजिप्ट। बट ही हैड स्टेड बिहाइंड फॉर ही वॉज इन लव विथ अ रीड। रीड मीन्स एक तरह का प्लांट होता है जो शेलो वाटर में, जहाँ पे बहुत थोड़ा सा पानी होता है, उसमें एक प्लांट ग्रो करता है, उस कहते हैं रीड। एक टाइप का प्लांट है ये। इट इज़ रिडिकुलस ट्वीटेड द अदर शेलोस एंड फ्ली अवे। बट क्या होता है कि जो शेलो बर्ड है उसके फ्रेंड्स चले जाते, वो क्यों नहीं जाता है? क्योंकि उसे जो ये प्लांट है ये बहुत पसंद आ जाते, जिसकी वजह से वो वहाँ रुक जाता है। तो अदर स्वेलो कहता है कि वो हंसता है उसके ऊपर और उड़ जाता है, वो चले जाते हैं, कि मतलब ये कैसा बर्ड है जो एक प्लांट के लिए यहाँ पर रुक रहा है। आफ्टर दे हैड गॉन ही फेल्ट लोनली। जब सारे ही बर्ड्स, उसके फ्रेंड्स चले जाते हैं तो वो क्या अकेला फील करता है। विल यू कम अवे विथ मी, ही सेड टू द रीड। जो शेलो बर्ड है वो कहता है, किससे? रीड से कहता है, प्लांट से कहता है कि तुम मेरे साथ चलोगे। बट द रीड रिफ्यूज, द रीड मना कर देता है। आई एम ऑफ टू द पिरामिड, द स्वेलो क्राइड। जो बर्ड है वो चिल्लाता है कि मैं दूर हूँ पिरामिड से। इजिप्ट में पिरामिड्स होते हैं। ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा आप लोगों ने सुना होगा, इट इज़ द लार्जेस्ट पिरामिड। तो वो कहता है कि मैं अपने पिरामिड से क्या हूँ? दूर हूँ। ऑल डे अलॉन्ग द फ्लो एंड देन ही अराइव्ड इन द सिटी वेयर आई पुट अप। पूरा दिन वो जो बर्ड है वो सिटी के ऊपर उड़ता रहता है, एंड देन उसके बाद वो सिटी में आता है, और वो कहता है कि मैं कहाँ पर, मतलब एक तरह से रेस्ट करूँ, कहाँ बैठूँ। देन ही सॉ द स्टेच्यू ऑफ द हैप्पी प्रिंस। आई विल पुट अप देयर, ही क्राइड। वो हैप्पी प्रिंस का स्टेच्यू देखता है और चिल्लाता है जोर से कि मैं यहाँ जाऊँगा। ही अलाइटेड बिटवीन
द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस। अलाइटेड मीन्स स्टूडेंट्स लैंडेड आफ्टर फ्लाइंग। जब उड़ने के बाद कोई बर्ड जो लैंड होके नीचे आता है तो उसे कहते हैं अलाइटेड। तो वो कहाँ पे लैंड करता है? हैप्पी प्रिंस के पैरों के बीच में। एंड फाउंड अ गोल्डन बेडरूम जस्ट, और वो क्या देखता है कि एक उसको क्या मिल गया? गोल्डन बेडरूम में सोने का एक बेडरूम मिल गया है। जस्ट एज ही वॉज गोइंग टू स्लीप, जैसे ही वो सोने वाला होता है, अ ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम, उसके ऊपर एक पानी की बूंद आकर गिरती। हाउ क्यूरियस, ही क्राइड, देयर इज नॉट अ सिंगल क्लाउड इन द स्काई येट इट इज रेनिंग। उससे आश्चर्य होता है कि कैसे, मतलब एक भी जो है बादल नहीं है आसमान में और बारिश कैसे हो रही है, कैसे हो सकती है। Another drop fell. He looked up. The sky prince was crying. एक और बूंद उसके ऊपर आकर गिरती। वो ऊपर देखता है, उसने ऊपर देखा कि जो प्रिंस है वो क्या है? रो रहा है, हैप्पी प्रिंस। हु आर यू? द स्वेलो सेड। स्वेलो पूछता है कि तुम कौन हो? बर्ड। आई एम द हैप्पी प्रिंस। स्टैचू कहता है मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। वाई आर यू वीपिंग देन? आज द सैलो। सैलो जो है वो कहता है कि फिर तुम क्यों रो रहे हो? क्योंकि उसका नाम क्या था स्टैचू का? हैप्पी प्रिंस। तो कहता था, इसलिए उसने कहा कि फिर तुम क्यों रो रहे हो? When I was alive, answered the statue, I did not cry. My courtiers called me the happy prince. वो कहता है, स्टैचू बोलता है कि जब मैं जिंदा था मैं कभी नहीं रोया। मेरे जो कोर्टियर्स थे, मीन्स वो जो ये राजकुमार है, तो इसका जो दरबार था वहाँ पे जो लोग होते थे, जो राजा या क्वीन होती है, किंग और क्वीन, उनका जो कोर्ट होता है, मीन्स एक तरह का जो दरबार होता है, वहाँ पे जो पर्सन्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कोर्टियर्स कहते हैं। कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस। तो मेरे जो कोर्टियर्स थे वो मुझे क्या? हैप्पी प्रिंस कहकर बुलाते थे। सो आई लिव्ड एंड सो आई डेड। नाउ दैट आई एम डेड, they have set me up where I can see all the misery of my city. Though my heart is made of lead, yet I weep. वो कहता है कि मैं अब मर चुका हूँ, और उन्होंने, मतलब उसके जो कोर्टियर्स थे, उन्होंने उसे यहाँ पुट कर दिया है, मीन्स यहाँ पर पुट कर दिया जहाँ से कि वो अपने सिटी के जो दुख है वो देख सकता है। मिस्री मीन्स दुख। तो वो अपने वहाँ से क्या है, वो अपने जो लोग थे उन्हें, उनके दुख को वो वहाँ से देख सकता था। वो कहता है कि मेरा हार्ट जो है वो लीड का बना हुआ है। लीड जो होता है एक सॉफ्ट ग्रे मेटल होता है स्टूडेंट्स, उसका बना हुआ है मेरा हार्ट, बट फिर भी मैं क्या रो रहा हूँ। फार अवे कंटिन्यूड द स्टैच्यू, देयर इज अ पुअर हाउस। स्टैच्यू जो है वो आगे अपनी बात कंटिन्यू करता है। There is a poor house, I can see a seamstress. वो कहता है कि यहाँ से कुछ दूर एक पुअर हाउस है। पुअर हाउस मीन्स, पुअर हाउस है जहाँ पर एक इंस्टीट्यूशन होता है जहाँ पे गरीब लोग जो है वो रह सकते हैं। इट वॉज पेड फॉर बाय द पब्लिक, और मतलब उनको रहने के लिए वहाँ पे कौन हेल्प करता है? पब्लिक जो है वो हेल्प करती है। तो एक पुअर हाउस है। आई कैन सी अ सीमस्ट्रेस, में क्या देख सकता हूँ? एक सीमस्ट्रेस मीन्स ऐसी महिला को देख रहा है जो सिलाई कर रही है, और सिलाई करके कपड़े बना रही है। Her face is thin and worn. She is making a gown for the queen's maids of honor. Her boy has fever and the wants oranges. She has only water. Swallow, will you take her my ruby? वो कहता है कि मैं देख रहा हूँ उसका जो फैन है, उसका जो बच्चा है वो बीमार है। वो क्या चाहता है? वो ऑरेंजेस चाहता है। उसे, उसके बच्चे को क्या है? फीवर है, बुखार है, और वो ऑरेंजेस चाहता है। बट उस महिला के पास क्या? सिर्फ पानी ही है, खाने को कुछ नहीं है। तो कहता है स्वेलो, विल यू टेक हर माई रूबी? क्या तुम मेरी रूबी जो है वो लोगे, निकालोगे? आई हैड रेडर नॉट, आंसर द स्वेलो। स्वेलो बोलता है नहीं।
But the happy prince looked so sad that the swallow agreed. It is very cold here, he said, but I will stay for one night. वो मना कर देता है swallow कि नहीं, मैं रूबी नहीं लेकर जाऊंगा और दूंगा। जो प्रिंस होता है उसका जो फेस होता है वो काफ़ी दुखी हो जाता है, तो swallow जो है वो अग्री हो जाता है, मीन्स उसकी बात मानने के लिए वो रेडी हो जाता है। वो कहता है कि यहाँ पर बहुत ठंड है, बट फिर भी मैं यहाँ पर एक रात रुकूंगा। The swallow plucked the ruby and flew away with it. swallow जो है वो रूबी निकालता है उसकी तलवार से और उड़ जाता है उसे लेकर। At last he came to the poor house. The boy was tossing on his bed and the mother was asleep. वो जब वो वहाँ उस घर पहुँचता है, पुअर हाउस पहुँचता है, तो वहाँ पर क्या है, वो बेड पर जो बॉय रहता है वो करवट बदलता रहता है और जो मदर है वो सो रही होती है। ही लेट द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल एंड फ्लू बैक। तो जो स्वेलो बर्ड है वो वहाँ पर टेबल पर उस रूबी को रख कर वापस आ जाता है। इट इज़ क्यूरियस, ही रिमार्क्ड, बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ ऑल्दो इट इज़ सो कोल्ड। मतलब वो स्टेचू के पास आकर के बोलता है कि ठंड है, उसके बावजूद भी मुझे गर्मी फील हो रही है। आश्चर्य होता है कि इतनी ठंड है फिर भी मुझे गर्मी महसूस हो रही है। दैट इज़ बिकॉज यू हैव डन अ गुड डीड, सेड द प्रिंस। प्रिंस कहता है उसे कि तुमने एक अच्छा काम किया है इसलिए। व्हेन डे ब्रोक ही फ्लू टू द रिवर एंड हैड अ बाथ। टू नाइट आई गो टू इजिप्ट, सेड द स्वेलो। वो नेक्स्ट डे रिवर के पास जाता है बर्ड और बाथ लेता है, मीन्स नहा के आता है, और वो कहता है स्टैचू से कि मैं जो है वो इजिप्ट जा रहा हूँ आज रात। स्वेलो सेड द प्रिंस, विल यू स्टे वन नाइट लॉन्गर। प्रिंस जो है वो स्वेलो से फिर कहता है कि तुम एक नाइट और रुक सकते हो। आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, आंसर द स्वेलो। मतलब उससे तो इजिप्ट जाना होता है क्योंकि यहाँ पे ठंड बहुत हो रही होती है। I can see a young man, said the prince. He is trying to finish a play for the director of the theatre, but he is too cold and hungry to write. My eyes are made of sapphires. Pluck out one of them and take it to him. स्टैचू जो है प्रिंस का स्टैचू सलो से कहता है कि मैं एक यंग मैन को देख सकता हूँ, और वो क्या एक प्ले जो होते हैं ना, नाटक होते हैं, तो वो एक नाटक लिख रहा होता है। वो उसके जो डायरेक्टर है थिएटर का, उसके लिए वो लिखने की कोशिश कर रहा होता है, बट ठंड की वजह से वो लिख नहीं पा रहा है। वो भूखा है इस वक्त और ठंड भी है। तो क्या तुम मेरी जो सफ़ायर मतलब जो ब्लू स्टोन की जो उसकी आइज़ है वो काफ़ी कीमती होती है, तो कहता है कि क्या तुम मेरी एक आँख निकाल करके उसे दे आओगी। डियर प्रिंस, सेड द सैलो, आई कांट डू दैट, एंड बिगन टू विप। वो कहता है प्यारे प्रिंस, मैं नहीं कर सकता ये। लिटिल स्वैलो, सेड द प्रिंस, डू एज आई से। प्रिंस कहता है स्वैलो सो कि जो मैं कह रहा हूँ वो करो। द स्वैलो प्लग्ड आउट द प्रिंस आइज। स्वैलो जो है वो प्रिंस की आइज निकालता है। ही वेंट एंड पुट द सफायर ऑन द टेबल विदाउट द स्टूडेंट सीइंग हिम। वो स्वैलो जो है उस बॉय के पास जाता है जो प्ले राइट कर रहा होता है, और वो उसकी टेबल पे जाकर रख देता है। When the student looked up, he found the sapphire. This is from some great admirer, he cried. Now I can finish my play. वो उस सफ़ायर को वो स्टूडेंट आकर देखता है और बहुत खुश हो जाता है, प्रशंसा करता है और कहता है कि अब मैं ये प्ले फिनिश कर सकता हूँ। I come to say goodbye, said the swallow the next day. नेक्स्ट डे
स्वैलो जो है स्टैचू के पास आता है और कहता है कि मैं गुड बाय कहने आया हूँ। स्वैलो सेड द प्रिंस, विल यू स्टे 1 नाइट लॉन्गर? प्रिंस कहता है कि तुम एक रात और रुक जाओगे? इट इज़ विंटर, आंसर द स्वैलो। स्वैलो कहता है कि ये ठंड है। बर्ड्स को क्या होता है, ठंड लग रही होती, उसे दूसरी कंट्री जाना था। वो कहता है कि इट्स विंटर। इन द स्क्वायर बिलो सेट द प्रिंस, हैप्पी प्रिंस, देयर स्टैंड्स अ लिटिल मैच गर्ल, हर मैचेस हैव गॉट spoiled. Her father will beat her if she does not bring some money. Give her my other eye. हैप्पी प्रिंस स्वैलो को कहता है कि यहाँ पर एक स्क्वायर है नीचे। स्क्वायर का मतलब एक मतलब प्लेस है जिसकी चारों साइड्स के बिल्डिंग्स हैं। वहाँ पर एक लिटिल गर्ल है और उसके पास माचिस, और उसकी माचिस से जो है वो ख़राब हो गई है। तो अगर वो ये मतलब कुछ पैसे लेकर नहीं जाएगी तो उसके फादर क्या है, उसे मारेंगे। तो तुम उसे मेरी जो एक और आई है, आँख है, वो दे आओ। आई विल स्टे विथ यू सेड द स्वैलो, बट आई कांट प्लक आउट योर आई। जो स्वैलो वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ रुकूंगा, बट मैं तुम्हारी आँख नहीं निकाल सकता। ओके, सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। टेक केयर।